ठहरने के बाद अब उनने जब बाबा का हुक्म हुआ कि 8:30 बजे सब महिलाएं नहा धो के खा पी के थोड़ा सा दरबार में आ जाओ, तो सब आ गए। जैसे आ गए तो अब उन तीनों पुरुषों ने सोचा कि अब यहाँ तक तो आ ही गए, और इतना बड़ा खर्चा भी हो गया, चलो बाबा का दर्शन करें। तो बोले यार हुक्म नहीं है, तो बोले फिर बोले पहचान जाएंगे, तो बोले चलो भाई लोगों की साड़ी पहन लो, अपने अपनी भाई लोग। तो अपनी अपनी भाई लोगों की साड़ी पहन ली और साड़ी ब्लाउज पहन के और एकदम पीछे बैठ गए। तो बाबा तो सब जानते थे, तो उनने ऐसी उंगली करी और बाबा ने कहा इरज भाई जाओ उनको देखो, वो जो पीछे हैं उनको पकड़ के लिया। तो जब उनको पकड़ के ले आने लगे तो उन लोगों ने ऐसे घूंघट घाल दिए। जब ऐसे घूंघट घाल दिए तो बाबा ने कहा इरज इनके घूंघट निकालो इनके घूंघट। तो जब उनके घूंघट निकाले गए तो बाबा ने कहा कि मैंने कहा था कि जो भाई लोगों के प्रोग्राम में पुरुष आएंगे उनको अगले जन्म में कुत्ता या गद्दा बनना पड़ेगा, तो तुमने क्या सोचा? बोले बाबा मैंने तो ऐसा सोचो कि दर्शन तो हो ही जाए, इधर तक तो आ ही गए, अब गद्दा बने चाहे कुत्ता बने, बाबा के कहाँ के बाबा का कुत्ता, बाबा का गद्दा, बाबा का अच्छा। बाबा बोले तू एक साइड हो जा, मैं तेरे को माफ़ किया। दूसरे को बुलाया, तू क्या सोच के आया? बाबा मैं यही सोच के आया कि दर्शन तो हो ही आया, इतना खर्चा हो गया, यहाँ तक आए हैं, अब गद्दा या कुत्ता जो भी बने, बाबा के तो कहाँ के बाबा का गद्दा, बाबा का कुत्ता। अच्छा तू भी एक साइड हो जा, मैंने तेरे को माफ़ किया। तीसरे भाई को बुलाया, तू क्या सोच के आया? बाबा बोले मैंने तो ऐसा सोचो कि जब इन दोनों को जो हुज्जे सो मोरवा ही मुझे दर्शन काय खचू तो बाबा की जय हो जाएगा। ઓકે ઓકે એટલે જાણે કે આ બેઉ જણાને તમે જે કીધું તે મારું બી કરશો તો હું દર્શન કાંઈ ચૂકી જાઉં પહેલા હું એ લોકોની સાથે આવી. I'll tell you the story. Yeah, what Ditaram ji is saying is that once Baba sent a circular saying there's going to be a savas only for women, and the women were within the ages of 26 to 65. No, 56. 56. 26 to 56. They couldn't be younger than that nor older than that. No children, no men. If a man broke the order and came, then he would have to be born in his next life as a dog or a donkey. So to keep the men away. So now people coming from Hamirpur, they're very protective of their women. They won't let their women travel alone. So, and in those days there weren't frequent trains or buses or anything. So 3 men said, okay, we will take the group of women and we will go accompany them to wherever the darshan was. And so they did. Now, they'd come all this way. They had spent money to come on the train with their women. So they thought, why waste this opportunity? We'll take darshan. But Baba said, no women. So how can we go there without him finding us out? So they said, okay, we'll wear our wives' saris and go. So they did that. They put on their wives' saris and they went and they sat right at the back. So from the back they could see Baba, but they thought Baba couldn't see them. However, Baba is all seeing, so what he did was he sent Erich and said, bring me those 3 women sitting at the back. So Erich went to the back and they realized that, Baba is going to drag them to the front. So they said, how can we escape this? So they said, we'll put our ghungat, the pallu of the sari, the northern women, they cover their faces. So they covered their faces and they walked to the front. So Baba said to Erich, take off the thing, I want to see their faces. So Erich got them to move the sari back and they turned out to be men. So Baba said, hello, what were you thinking of? Didn't I give you an order saying no men? So what were you thinking? So he asked the first one. The first one said, Baba, now I had come all this way, spent money and I was so close. I thought, let me take darshan. If I become a dog or a donkey in my next life, it doesn't matter. I'll be Baba's dog or donkey. So Baba said, all right, I forgive you. Go sit at the second one, he said, what did you think? So he said, I thought the same thing. I thought, well, I've come all this way. I've spent all this money to travel here. It would be such a shame to go away without taking Baba's darshan. And okay, if you make me a dog or a donkey in my next life, I don't mind. I'll be your dog or donkey. So then he said, okay, you're also forgiven. Then he turned to the third one. So what did you think? He said, well, I thought if these 2 are coming for your darshan and they're going to be dogs or donkeys, I don't care. I'll just come along and have my darshan anyway. Whatever happens to those 2 will happen to me, so I'm not too upset about it.
ये कौन से साल में हुआ था गीताराम जी? 56-57 की बात है लगभग, पूरा ख्याल नहीं। 56-57 he says. आप कहाँ से हैं? वहीं हमीरपुर से? किस एरिया बोला? अब तो हम मेहराबाद में रहते। हमीरपुर में रहते थे पहले क्या आसपास कहीं और? अब तो हमको 32 साल हो गए इधर। हमीरपुर में किधर रहते? नहीं प्रॉपर हमीरपुर हमीरपुर में हमारे गांव का नाम तेलिया है। अच्छा। हाँ, पनवाड़ी हरपाटपुर के पास, हरपाटपुर से लगा हुआ। 3 मील है हरपाटपुर। अच्छा, नहीं हम महोबा से हैं ना, हमने इसलिए पूछा। अच्छा, महोबा में भी तो प्रोग्राम हुए पहले बाबा के। अच्छा, वो नीलकंठी सुन के हमने कहा ना कि आप वहीं के हैं। महोबा में हमारा रेलवे स्टेशन का बड़ा मास्टर था मामा। अच्छा। वो था जिला झांसी का जी। तो हम वहाँ भी बहुत जाते थे। हाँ, और वहाँ वो होता है ना, प्रोग्राम होते थे पहले। अच्छा। वहाँ जाते थे। बाबा की मेहरबानी। अब देखो नसीब की बात, हर आदमी तो जय बाबा नहीं कर पाता। ये भी कई जन्मों की संस्कार। हमारे गांव में कोई जय बाबा नहीं करता। अरे राम राम भाई, राम राम कब आए? हाँ, कब आए थे यार, आते जाओ जरा जल्दी आया करो, ऐसा बोलते। अरन गाँव वाले भी जय बाबा नहीं कर पाते। अभी भी ऐसा है? अभी भी हाँ, अभी तक ऐसा। हाँ, नौरंगा बदल गया अकेले, पूरा नौरंगा बदल गया। नहीं तो नौरंगा की तो पहले फाटक बंद कर लेते थे। अरे पाखंड कर रहे, अरे पाखंड कर रहे, बंद करो फाटक। अब तो बाबा, अब तो पूरा नौरंगा। कई जगह तो आरती प्रार्थना होती नौरंगा में, दरवाजे में बाबा की जुलूस जाता ना, बाबा का अभिमान, आरती प्रार्थना होती है। और अब तो एक टाइम हमने वो देखा कि जो मुंगालाल है ना, उसका भाई बोलता कि अगर मेरे दरवाजे से भंगियों की बाइक कल से लेके निकलेंगी तो मैं एक आध को जान से मार दूंगा। हाँ, तो जब ऐसा प्रचार हो गया तो पहले से पुलिस का इंतजाम कर दिया। वहाँ 2 मील 3 दूर पे है मजबुआ मलेटा, वहाँ पुलिस रहती। उनको बुलाया कि भाई ऐसा हो रहा। बोले अच्छा, बाबा की ऐसी मेहरबानी। जैसे ही जलूस उसके दरवाजे के थोड़ी दूर वो एकदम कुल्हाड़ी लेके निकला, और कुल्हाड़ी लेके जैसे निकला तो उसके घरवाली ने पकड़ लिया। अरे तुमको क्या पड़ी, तुम ना देखो। तो उसने घरवाली को पटक दिया, यहाँ लात मार दी तो जगह पे मर गई। फिर वो भाग गया। आज तक उसका भी पता नहीं कि पुलिस ने मार डाला, वो खुद मर गया क्या। अब तो बाबा ने बड़ी, और उसका भाई जो है मुंगालाल, वो सब जगह जाता है, हर जगह प्रोग्राम में, और बाबा की बात बताता है। और मौलाना में इन्हें गिने लोग मिलेंगे, एक कानपुर में था, एक ये है। और ऐसी तुम्हें ब्राह्मण इना गिना मिल जाएगा। और ये आप भी याद नहीं है किसने बताया था कि इस अवतार काल में कल काल है, माया का युग है। ब्राह्मण, बानिया, ठाकुर, साहूकार लोग, बड़े अफसर वगैरह, 2 प्रकार के नाम नहीं बताए, 7 प्रकार के लोग ऐसा हाथ किया था, मेरे संपर्क में नहीं आ पाएंगे। इनकी तीसरी पीढ़ी जागेगी। तो आज तक हर आदमी जवाब नहीं कर पाता। ये भी कोई साधारण बात नहीं है। आपने लोगों के कई जन्मों के संस्कार हैं, इसलिए उनसे जुड़ गए। उनकी मेहरबानी, ये भी साधारण बात नहीं है, उनकी मेहरबानी बाबा। ये भी जब कई जन्मों के संस्कार होते हैं। बाबा ने एक बार कहा था, अच्छा, तो उसके ऊपर से हमारे बाबू राम प्रसाद हैं बहुत जल गए थे। वहाँ सब थे, गुरुप्रसाद बंगला में पूना में। तो पुकार जी को तो आपने तो खैर देखा होगा, जो बड़ा काला भारी जबान था। बोले ये मेरा पिछले अवतार का हनुमान है। और केशव बाबू को बोला ये मेरा तुलसीदास है। और हमारे से बोला ये मेरा पुराना अर्जुन का गीता है, एक दिन ऐसा आएगा कि इससे सारा विश्व प्यार करेगा। तो बाबू राम प्रसाद जो बैठे थे वो एकदम जल गए अंदर ही अंदर। मेरे से कुछ नहीं कहा, मैंने तो मंदिर बनाया। तो फिर बाबा ने कहा कि मैं ये बाबू राम प्रसाद मेरे से इतना प्यार करता है कि इसके प्यार से मैं जनता हूँ। फिर उसको जरा शांति मिली। फिर उसने ब्राह्मणों को भगाना चालू किया। उसी ने तो हमको भगा दिया था नौरंगा से। और जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, चले जाओ, तुम जाओ यहाँ से। पुकार जी के गुजरने के बाद हमीरपुर से भी ऐसा ही किया उसने। तो हम सीधे फिर इधर आए। जैसे इधर आए तो उसने मनी भाई को एक लेटर लिखा कि मनी भाई अच्छा आदमी नहीं है और इसको भगा दो। तो मनी भाई ने लिख के दिया कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा है, मैं नहीं भगाऊंगा। ऐसा उन्होंने लिख के दे दिया।
इस प्रकार से बाबा की मेहरबानी, फिर ये मनी भाई की मेहरबानी है जो यहाँ रहने का चांस मिला। तो आप आए कब यहाँ पे? आप यहाँ कब आए? मैं तो 32 साल हो गए लगभग। 32 साल हो गए आपको आए। बाबा की मेहरबानी। हमने बाबा को लिखा था कि बाबा हम आपके साथ रहना चाहते हैं, तो बाबा ने कहा टाइम आएगा, मैं बताऊंगा, टाइम आएगा। और लिखता रहता था। फिर कुछ दिन के बाद बाबा ने कहा कि आ जा और सीधा महराजाद आ जा, और तेरे परिवार को मेरा प्रेम आशीर्वाद, और जो लेटर सुनने में सम्मिलित हो उनको भी मेरा प्रेम आशीर्वाद। और दूसरे दिन थी मीटिंग नौरंगा में, मैं वहाँ कार्यकारिणी सदस्य था। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो उनकी सबको प्रेम आशीर्वाद बता दूँ और कल मैं चला जाऊँगा। तो बाबा की ऐसी मर्जी, ऐसी वो लेटर बताया बाबा, अरे तू नहीं जाना, तू मर जाएगा, तू जल जाएगा, वो आपकी अंगीठी है, मेरा बात है, क्या जाने वो होली है, वो फलानी रह पाया, वो ऐसा 3-4 लोग भग भी गए थे बाबा की यहाँ से। बोले तुरती जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा तो मैं एकदम घबरा गया। तो फिर मैंने बाबा को लेटर लिखा कि बाबा ये लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, इसलिए बिल्कुल मेरा दिल घबरा गया है कि ऐसा ना हो कि आपके साथ से मैं भाग के आ जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो बोले तू चिंता मत कर, एक दिन मैं तेरे को पकड़ के ले आऊँगा। तो फिर बाबा की मर्जी, उनकी जाने के बाद आ पाया, पहले नहीं आ पाया। तो उनकी मेहरबानी, वही मनी भाई की मेहरबानी जो उन्होंने ये जगह लगवा दी, मकान बना दिया, रहने का चांस दिया, अब उनकी मेहरबानी। हर आदमी तो आज तक जय बाबा नहीं कर पाता, ये नसीब ही नहीं है हर एक की, ये भी कई जन्मों के संस्कार रहते हैं। बाबा ने ये भी कहा था, जब मैं रावण से लड़ने के लिए गया तो तुम लोग रीछ और बानर के रूप में मेरे साथ थे, और जब मैं कृष्ण था तब तुम लोग गोपियों ग्वालों के रूप में मेरे साथ थे, और आज मैं अवतार मेहरबाब बन के आया हूँ तो तुम लोग प्रेमियों के रूप में मेरे साथ हो। ये उनकी मेहरबानी थी, ये भी साधारण बात नहीं, ये अपने कई जन्मों के संस्कार हैं जब उनसे जुड़ पाती। हर आदमी तो जय बाबा नहीं कर पाता। अभी आरण गाँव के 20-25 लोग हैं जो काम करते, दर्शन नहीं ले सकती, जिनके छोटे बच्चे हैं, आओ भाई आओ दर्शन ले ले, बच्चन हाँ गोली मिल जाए, प्रसाद नहीं कह सकती। और सब जा भाई ते जा, मोह नहीं जाने। जिनके बड़े बच्चे हैं भी कह मोह नहीं जाने ते जा, और पूरा दिन बैठे रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 रुपया का काम करें, पूरे दिन बैठ के निकाल देते। तो हर चीज़ का एक टाइम है, हर एक को जमाना था, ये की था। बाबा की मेहरबानी, उनकी मेहरबानी ये भी हर एक के संस्कार में है ही नहीं, क्या करते। उनकी मेहरबानी, हर आदमी तो जय बाबा नहीं कर पाता। You wanted to ask? Oh, what was he saying? He was saying that it is sad that people who live in Hamirpur, people who live in Arangaon, you know, they don't even say Jai Baba. They greet each other differently. They say Namaskar or Ram Ram or whatever. But even the good fortune of knowing that we can greet each other by saying Jai Baba, that is a very special gift, and it comes from many lifetimes of good sanskars, that we are able to be in the Avatar's presence and recognize him and greet people in his name. And he was talking about his own experience, about how one day Baba had sent him a letter saying, you come to Merazad and stay here with me and give my love blessings to your family and to whoever is around when you read this letter. So he went off to a meeting where he was like a volunteer in that group in Nauranga, and read out the letter, and they said, oh no, don't go there, it's very dangerous, you'll destroy your life, this, that and the other. So he got very nervous. He must have been a young man, so he got quite nervous. So he wrote back to Baba and said, people are saying this to me, what should I do? So Baba said, don't worry, one day I will drag you and bring you to me. And he said, yes, he did, but unfortunately it was after Baba dropped his body. But he didn't take that opportunity to come when Baba called him and be with Baba.